Okay, so welcome back, students. Today we are going to study two new concepts: area vector and electric flux. We have studied about the area vector in +1 class, but today we shall take some more knowledge on it. And electric flux will be a completely new topic for you. So watch this video carefully till end. So let us start. Dear students, in short, you can say that in physics, area vector, that is, area is considered as a vector quantity. You know very well what is area. If you will talk about a rectangle, let us say here I have this rectangular sheet, and let its length is 5 meters, and its breadth is, let us say, 2 meters. Then you will say its simple area in mathematics will be length into breadth, that is 5 into 2 is equal to 10 meters square. So you can say here 10 is its magnitude. This number is its magnitude. ये number इसका magnitude है. But what about its direction? What will be its direction? So in physics, when we talk about the direction of area, then it is defined as a vector directed perpendicularly outward. Perpendicularly outward from the surface. A vector directed perpendicularly outward from the surface. What I am writing here, see here, this is your sheet. In pink color it is colored here. I have a simple plain sheet and a uniform sheet. एक बराबर plain सतह है हमारे पास. So if you will talk about its area vector, so it will be a perpendicular vector directed outward. Directed outward, बाहर की तरफ. अगर आप शीट से ऊपर हैं तो ये वेक्टर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, upward direction. और अगर आप शीट से नीचे हैं, so this vector will be directed downward. So this will be the direction of your area vector. Area vector generally denoted by the S for surface area, from the word surface area, and sometimes it is also written as a vector. It is also written as a vector. So it is clear now. What is the magnitude of area vector? Its magnitude is equal to magnitude of the area. जो आपके एरिया का मैग्नीट्यूड होता है वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है. और जब हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट डायरेक्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड और आउटवर्ड. सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया. एरिया से बाहर की तरफ होना चाहिए, नॉट इनटू द एरिया. राइट. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. लेट आई हैव हियर दिस शीट, वर्टिकल शीट. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज क्लियर. जितना इसका एरिया होगा वो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा नंबर्स में. It is clear. But what about direction? So perpendicular to this surface is what? Vector along this. Or if you are on the other side, then this will be your perpendicular. Is it clear? Similarly, if you place a sheet at some angle, किसी एंगल पर शीट को आपने रख दिया तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस का वो उसका एरिया वेक्टर लिया जाएगा, लाइक दिस वे. और इन आउट अदर डायरेक्शन इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. इज इट ओके? तो इस तरह से हम लोग एरिया का वेक्टर जो है वो डिफाइन करते हैं. ओके, सो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे. लेट अस से आई हैव दिस स्मॉल शीट ऑफ पेपर. सो व्हाट इज इट्स एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस? सो इफ यू विल टॉक अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, then it will be a simple area, length into breadth, जो भी इसका आएगा. And if you want to draw its area vector, vector draw करना चाहते हैं आप इसका, then that will be perpendicular to this surface. So this time this surface is lying
ऑन द फ्लोर, नीचे ये बिल्कुल प्लेन सतह में इस टाइम आपका सरफेस रखा हुआ है. लेट मी हेल्ड इट ऑन माई हैंड. सो इट्स वेक्टर विल बी लाइक दिस वे एट एनी पॉइंट डायरेक्टेड अपवर्ड, कंप्लीटली अपवर्ड, पूरी ऊपर की तरफ, पूरी तरह से ऊपर की तरफ. ये इसका एरिया वेक्टर होगा. अगर आप अपनी शीट को इस तरह से रख देते हैं, लेट अस से आई एम प्लेसिंग माय शीट लाइक दिस वे, मैंने इसे वर्टिकली ऊपर रख दिया, तो इसका जो परपेंडिकुलर है बेटा वो इस तरह से आ जाएगा. दिस विल बी टुवर्ड्स इट्स राइट साइड, वन साइड. और अगर अदर साइड की बात करें आप, तो ये इस तरफ हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग वेक्टर जो है वो शो करते हैं एरिया का. इज इट ओके? अब जैसे जैसे आप इस शीट को टिल्ट करते जाएंगे, मान लीजिए मैंने शीट को थोड़ा सा घुमा दिया, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी थोड़ा घूम जाएगा. ठीक है, अरे बात समझ में? मीन्स कि आपका जो वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए. दैट इज नोन एज योर एरिया वेक्टर. ओके students, I have drawn here some diagrams. Let us say this is a cuboid, so it has all 6 faces, right? I hope this diagram is clearly understandable to you. So these all 6 faces will have their own surface area in magnitude and in direction. आमने सामने का एरिया सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में. अगर ये क्यूब है तो सभी फेस का एरिया बराबर रहेगा. देयर आर टोटल 6 फेसेस, सभी जानते हैं. बट इफ यू विल टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन, सो अगर आप लोग ये वाला जो फेस है इस तरफ, इस फेस की अगर आप बात करें, तो इसका आउटवर्ड परपेंडिकुलर आपका ये बनेगा. इज इट ओके? इसके ऑपोजिट आप इस फेस को ले लें, तो इसका जो परपेंडिकुलर है बेटा वो इस तरफ बनेगा. तो ये जो मैं वेक्टर्स बना रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर बना रहा हूँ अलग अलग फेस के. लेट अस से इस फेस को 1 बोल दें आप, तो ये S1 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका S2 वेक्टर हो जाएगा. इसी तरह से ये आपका टॉप फेस है. टॉप फेस का एरिया वेक्टर अगर आप बनाना चाहें तो सीधा ऊपर की तरफ बनेगा. लेट अस से आई नेम इट एज अ S3 वेक्टर. अब इसका जो बॉटम फेस आ गया ये नीचे, इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे आप, तो दैट विल बी कंप्लीटली डाउनवर्ड. यू विल नेम इट एज लेट अस से S4 वेक्टर. अब 2 फेस रह जाते हैं. देखो ये फ्रंट फेस का सीधा आगे की तरफ आ जाएगा. यू विल नेम इट एज अ S5 वेक्टर. और ये इसका बैक फेस आ गया, बिल्कुल सीधा जो पीछे है, तो इसका एरिया वेक्टर ये आ जाएगा. दिस विल योर S6 वेक्टर. नाउ फ्रॉम दीज 6 एरिया वेक्टर्स यू कैन से दैट अगर आप S1 और S2 की बात करें, तो ये दोनों ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल नेगेटिव है इनकी. सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर S1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ S2 वेक्टर. ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है. सिमिलरली फॉर एनी अदर 2 पेयर यू कैन राइट दैट इज S3 और S4 की बात करें, तो अगर S3 को आप पॉजिटिव वेक्टर मानते हैं अपवर्ड वाई एक्सिस में, तो S4 आपका नेगेटिव हो जाएगा. आप यहाँ पे लिख सकते हो S3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ S4 वेक्टर. मीन्स 3 और 4, ये टॉप और ये बॉटम, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है. सो दिस इज माय नेक्स्ट डायग्राम विच यू कैन सी हियर. इट इज अ सिलेंडर. ये मेरे यूनिफॉर्म एरियाज हैं, यूनिफॉर्म शेप है हमारे पास, एक बराबर जैसी शेप होती है. तो जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो इसका एक टॉप सर्कुलर फेस है, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड आ जाएगा, कुछ भी नाम दे दीजिए. एक नीचे आ जाएगा. ओके, सो यू कैन कॉल इट एज अ S वेक्टर लेट अस से. तो यू कांट कॉल द बॉटम वन, दूसरा जो है उसको S वेक्टर नहीं बोल सकते. ठीक है, यहाँ पर आप S नहीं बोल पाएंगे उसको, क्योंकि डायरेक्शन में दोनों अलग अलग हो गए. एरिया ठीक है बराबर है, जितना सिलेंडर का टॉप का एरिया होगा. लेट अस वेट, सी दिस टेप, मेडिकल टेप रोल, इट इज लाइक अ सिलेंडर. ये एक सिलेंडर की तरह है. तो इसमें देखो एक फेस ये है टॉप और ये बॉटम का मान लीजिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड. तो ये ऊपर का जितना एरिया है उतना ही इसका नीचे का एरिया होगा. तो एरिया तो बराबर, लेकिन एरिया वेक्टर जब बनाएंगे तो टॉप का एरिया वेक्टर अपवर्ड बनेगा, देखो इस तरह से, और बॉटम का एरिया वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड बनेगा. तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी. तो इसको या तो आप S1 और S2 नाम दे दीजिए. इज इट क्लियर? या फिर आप इसको S बोलते हैं तो नीचे वाले को आप लोग माइनस S वेक्टर नाम देंगे. इज इट क्लियर?
अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस की। ठीक है, ये मेरे पास कर्व सरफेस आ गया, ये इसका कर्व सरफेस होगा इस तरह से। अब इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर है बेटा वो हर जगह परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, देखिए लेट मी टेक केयर एग्जांपल। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये कर्व फेस आ गया। अब आप मान लीजिए इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर बनाना चाहते हैं, इस तरफ जहां मैं मार्कर लगा रहा हूं, तो दिस विल बी अलोंग दिस वे, ये इस तरह से होगा। आ रही बात समझ में? इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा बिल्कुल। अगर आप इसके यहाँ ऊपर टॉप फेस पे आ जाते हैं तो ये सीधा ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो परपेंडिकुलर थोड़ा आपका ऐसे घूम जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जाएंगे तो परपेंडिकुलर इस तरह से बन जाएगा। इसका मतलब हर पॉइंट पर आपके एरिया वेक्टर जो है, एरिया जो परपेंडिकुलर वेक्टर सरफेस का, वो आपका चेंज होता जाएगा। और ध्यान से देखें, आप सिलेंडर को अगर मैं ऐसे टॉप रख दूं, सीधा खड़ा करके रख दूं, और इसके बीचों बीच रेडियस में से अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये इसका रेडियस है, रेडियस से होती हुई मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये देखिए ये दोनों साइड आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। इधर भी परपेंडिकुलर बन गया और इधर भी परपेंडिकुलर बन गया। आ रही बात समझ में? इसका मतलब कि किसी भी सिलेंडर के एरियल वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है वो उसके सेंटर से पास करता है। मीन सेंटर से जो रेडियस है, रेडियस के अलॉन्ग कोई भी लाइन लगा दीजिए, वो उसका एरिया वेक्टर होगा जिस पॉइंट पर आप उस रेडियस को ड्रॉ कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो सीधा परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका, इस पॉइंट की बात करें तो सीधा परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरफ। थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा, वैसे इस तरफ भी चेंज हो जाएगा, वैसे यहाँ भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा और आगे आए तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो परपेंडिकुलर लगभग ऐसे आ जाएगा। तो ये सारे एरिया वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट करेंगे और आपके कर्व सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और ये सारे वेक्टर अगर पीछे प्रोड्यूस कर दिए जाएं तो ये जो इसकी एक एक्सिस है, सेंटर एक्सिस जिसे आप बोल सकते हो, वहां पर जाके ये एक रेडियस पर आपस में मिलेंगे, रेडियस के अलॉन्ग होंगे और इसके सेंटर पर जाके ये सारे मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सफियर की, स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस है, उसका आपने कहीं परपेंडिकुलर बनाना है, एरिया वेक्टर शो करना है उसका, तो दैट इज आल्सो सिंपल अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। जैसे मान लो यहीं पर आपने कोई ये पॉइंट ले लिया ऑन द सरफेस और यहाँ पर आप इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लाइन उसके सेंटर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सफियर के सरफेस पर सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसे कहीं भी बनाया जाए। अगर आप यहाँ जैसे बनाना चाहते हैं, मान लो ये आपके पास कोई पॉइंट है और इस सरफेस पर आप एरिया वेक्टर लेना चाहते हो, तो यू विल टेक दैट लाइक दिस वे। आने वाले नेक्स्ट 3-4 टॉपिक्स में ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसको बेटा ध्यान से समझिए। इट इज नॉट जस्ट लाइक टू कंप्लीट योर नोट्स। ठीक है, इसको समझना है आपने, कॉन्सेप्ट को फील करना है, इसको आपने समझना है, इसको दिमाग में बिठाना है कि ये क्या होता है। ठीक है, सारी बात समझ में? बनाने डायग्राम बनाने के लिए तो जस्ट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम्स, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी बैठेगा, वो भी इस पूरे पेज को रखेगा और ऐसे बढ़िया ड्राइंग बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करे तो बहुत सुंदर सुंदर, इससे भी सुंदर डायग्राम्स बना के रख देगा। लेकिन क्या उसे ये वेक्टर समझ आ रहे हैं, परपेंडिकुलर समझ आ रहे हैं, सेंटर समझ आ रहे हैं, टॉप एंड बॉटम फेस समझ आ रहे हैं, ये नेगेटिव वेक्टर समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बात वो है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वॉच दिस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से हियर। ओके, जस्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना वीडियो पॉज करें और ये डायग्राम्स बना दें और जी लो जी हो गया हमारा काम। ठीक है, टीचर्स को दिखाने के लिए, असाइनमेंट कॉपी बनाने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया? जब आप आगे जाके किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो वहाँ पे आपको वो डायग्राम्स काम नहीं आएंगी, जो आपने समझा होगा वो काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात होगी हमारे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। ये बात होगी हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेसेस की। ठीक है, इन सरफेसेस में से ये जो पहले वाला सरफेस था, देखो ये मेरा ओपन सरफेस है, इसे हम ओपन सरफेस कहते हैं। 1 2 3, ये जो मेरी 3 डायग्राम्स हैं, वी कॉल देम एज अ ओपन सरफेस। ओपन सरफेस मतलब ये खुली है चारों साइड से, जैसे मेरे पास ये शीट थी, ये ओपन है, पूरी खुली है, इसके ये कोई वॉल्यूम इनक्लोज नहीं कर रहा है, तो वी कॉल इट एज ओपन सरफेस। बट 1 2 3, these 3 faces,
these three surfaces, these are known as the closed surface areas. These are known as the closed surface areas, क्योंकि ये सारे अपने अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज करते हैं। और ये बात समझ में, जैसे ये सिलेंडर है, चारों साइड से बंद है, ऊपर से नीचे से साइड से बंद है पूरी तरह से। ये आपका क्यूब है, ऑल 6 फेसेस ऐसे, 2 ऐसे मिला दिए, 2 ऐसे मिला दिए, 2 ऊपर से रख दिए, तो अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज हो गया, तो क्लोज सरफेस एरिया हो गया। ये सफियर है, बंद है चारों साइड से, बिल्कुल गोला है इस तरह से। आ रही बात समझ में? ओके, नाउ एंड दीज वर आल्सो व्हाट, दीज वर आल्सो योर रेगुलर सरफेसेस और यूनिफॉर्म सरफेसेस। लेकिन अब अगर कोई इररेगुलर सरफेस आता तुम्हारे पास, इररेगुलर की बात करता हूं, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं, देखिए उस केस में हम एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं। लेट मी से हियर, मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई सरफेस है, लेट अस से ये आपके पास एक सरफेस है, प्लेन शीट एरिया, ओपन सरफेस एरिया, लेकिन अब रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब बिल्कुल सीधा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए अगर मैं सरफेस पर यहां जैसे कोई एरिया लेता हूं छोटा सा, ठीक है, अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इस तरफ आएगा। अगर आप इसके इस पॉइंट के ऊपर कोई एरिया लेते हैं, मान लीजिए ये ऊपर आपने कोई एरिया कंसीडर किया, तो इसका परपेंडिकुलर अपवर्ड आ जाएगा। अगर आप यहां जैसे कोई छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, स्मॉल एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाएगा। अगर आप यहां जैसे कोई स्मॉल एरिया ले लेते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर अपवर्ड चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां जैसे कोई एरिया लेते हैं, तो ये बिल्कुल प्लेन हो गया छोटा सा पार्ट, तो इसका परपेंडिकुलर अपवर्ड चला जाएगा, आउटवर्ड। वैसे आप नीचे की तरफ बात करें तो सभी एरिया वेक्टर इनके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह का सरफेस हमारा इररेगुलर सरफेस होता है। एज अ होल देखें आप पूरे सरफेस को, तो इररेगुलर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, इसका एरिया वेक्टर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सभी एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग है। तो इस तरह के सरफेस को हम लोग इररेगुलर सरफेस कहते हैं। अब इस केस में जब हमें स्टडी करनी होती है बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सरफेस एरिया को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, छोटे छोटे एरियाज बना देते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये पूरा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप इसको देखें, लेट अस सी हियर केयरफुली, मैं इसे ग्रीन पेन से मार्क करता हूँ। अगर आप इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें, मान लीजिए, तो ये पूरे का पूरा इस हर जगह इसकी डायरेक्शन जो है आपकी कहाँ रहेगी, ऑल डायरेक्शन इज टुवर्ड्स माय राइट साइड, यू कैन से लेफ्ट साइड। लेकिन जब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की बात करें, तो इस पूरे की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो मतलब मेरा ये छोटा सा जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक फिर से मैं थोड़ी बड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, एक जस्ट वेट। ओके, वॉच दिस बुक, उल्टा करके रख दिया मैंने इस बुक को। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक छोटी सी डायरी है, और इसको मैंने ऐसे करके रख दिया यहाँ पे इस तरह से। आर यू वॉचिंग दिस? ठीक है। सो इसका जो ये वाला पार्ट जो है, दिस वन, इसका जो परपेंडिकुलर है वो इस तरफ आ जाएगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, एरिया से बाहर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो वो यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ देखेंगे तो इधर आएगा। मतलब इस पूरे पार्ट में एरिया वेक्टर एक जैसा है। तो ये हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लोग इसका एक छोटा सा यूनिफॉर्म एरिया मान लेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया के ऊपर एरिया वेक्टर एक जैसा है। लेकिन अगर आप इसके बैक साइड वाली बुक के पार्ट पे जाएंगे, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो इस तरह से बनेंगे। तो इसका जो बैक साइड का जो पार्ट होगा आपका, वो पूरा एक यूनिफॉर्म माना जाएगा। तो हम लोग अपने बहुत बड़े इरेगुलर एरियाज को छोटे छोटे स्मॉल रेगुलर एरियाज के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उनके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं। और फिजिक्स में फिर हम लोग एक मैथ्स का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सबको सम करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं, और टोटल कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। तो अभी ये आएंगी आगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So this is my next sheet here. In this you will learn about the electric flux. So first of all, let me write its most simplest definition. सबसे सिंपल से सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या समझेंगे? So dear students, I have written here the definition of electric flux. सबसे सिंपल वर्ड्स में जो आप समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस। किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। सबसे पहले फ्लक्स का लिटरल मीनिंग समझ लो। फ्लक्स का लिटरल मीनिंग होता है फ्लो, फ्लो होना, जैसे वाटर फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया गया है?
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग डिनोट करते हो किससे? लाइन से। किस एरिया में कितनी फील्ड है आप लोगों को पता लगाना हो तो आप क्या लिखते हैं? वहां पे लाइंस बनाते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो किसी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही हैं, वही लिखा डेफिनेशन में। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, कितना लिंक हुआ, मतलब कितना उसमें है फ्लक्स, दैट इज डिफाइंड एज द वेरी सिंपल वर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, जब भी हम किसी एरिया में फ्लक्स की बात करेंगे तो हम सिंपली कहेंगे कि उस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। सी दिस ब्लैक पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड लाइंस, एक बराबर इन सबके बीच में स्पेस है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर यूनिफॉर्म। वी हैव टेकन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर बनाई है। But you can say, you can take, I have drawn here a single image, but you can take it as a 3 different images. Image number 1, image number 2, and image number 3. In all these 3 cases, I have taken a sheet, open surface sheet. इसे ले लीजिए, ये मैंने एक शीट ले ली, ओपन सरफेस शीट है आपके पास है किस तरह से। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओपन शीट है, थिन शीट। So here, what is in first case? Your sheet is placed perpendicular to the electric field lines, like this way. Your lines are flowing, the electric field is flowing like this way. इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। You can say these are coming from my left side, इस तरह से आ रही हैं, सीधी आ रही हैं और आगे निकल जा रही हैं। It is clear? So इसमें से अभी कितनी लाइंस पास कर रही हैं? You can see, you can count them. 1 2 3 4 5 लाइंस पास कर रही हैं यहाँ से। इट इज क्लियर? आ रही बात समझ में? कितनी लाइंस पास कर रही हैं यहाँ पर? 5 लाइंस पास कर रही, मैंने लिख लिया यहाँ पे। सेकंड केस में हमने क्या किया, फील्ड आपकी वैसी ही रही, वैसी लाइंस आ रही हैं, लेकिन मैंने अपने सरफेस को टिल्ट कर दिया, ऐसे घुमा दिया। पहले वर्टिकली खड़ा था, बिल्कुल सीधा। आ रही बात समझ में? परपेंडिकुलर था। So sorry dear students, there was some interruption due to light. So let us start again. So first case में जो आपका area है that was placed perpendicular to your fields. So here you get maximum number of lines 1 2 3 4 5. Second case आप लोगों ने क्या किया, अपने एरिया को थोड़ा आपने टिल्ट कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया ऐसे। तो उस केस में क्या हुआ देखिए, उस केस में आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी रह गई? 1 2 3. You are left with only the 3 lines. बट इन लास्ट केस व्हाट यू डिड हियर, आपने अपने सरफेस एरिया को पूरी तरह से आपने फील्ड के अलोंग कर दिया, एरिया फील्ड के अलोंग हो गया, पूरी तरह से पैरेलल हो गया। अब ऐसे फील्ड लाइंस आ रही हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सी माय हैंड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द कमिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर गोइंग लाइक दिस वे। ठीक है, अब सरफेस एरिया कहीं इनके बीच में ऊपर या नीचे लाई कर रहा है, वेरी थिन सरफेस एरिया है, तो उसमें से नंबर ऑफ लाइन जो ये हमारा टॉप, इसको हम वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस टॉप सरफेस, हम इस सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं जो ब्लैक पार्ट है, इसमें से कितनी लाइन क्रॉस कर रही हैं। अलग अलग फेस में से अलग अलग करेंगी, वो डिफरेंट इशू है। वी आर हियर वी आर कंसिडरिंग ओनली द वन दिस ब्लैक पार्ट सरफेस। ठीक है, जब आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो इस ब्लैक पोर्शन में से मैक्सिमम लाइन पास करी, कितनी पास करी? 5 लाइन्स। क्लियर? जब आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो कितनी रह गई? 3 लाइंस। और जब आपने इसको बिल्कुल फील्ड के ऐसे फील्ड लाइंस आ रही हैं और सरफेस आपका बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर देखो एक भी लाइन इसमें पास नहीं कर रही है। नो लाइन इज पासिंग थ्रू दिस। इफ नो लाइन इज पासिंग थ्रू दिस, दैट मीन्स हियर you have a 0 number of lines. Then what is the flux? In definition you have written here, electric flux linked with any surface is defined as the number of electric field lines. That means इस केस में 5 लाइनें पास कर रही हैं, इसमें 3 लाइनें पास कर रही हैं और इसमें कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका फ्लक्स है
If you will call it here as the electric flux phi E, symbol for electric flux is phi, and in base we write here E because electric flux. आगे मैग्नेटिक आएगा तो मैम लिख देंगे, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हियर इट इज 0. You call it as 0, that is it is its minimum value. In this case you will write here your electric flux is maximum. So this is the quantitative approach to the electric flux, कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, या इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से पास कर रही हैं. आ रही बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. So but in physics we need a formula. So this formula is given here like this way. Simple words में जो formula है वो दिया गया, phi is equal to magnitude of electric field multiplied surface area S. Simple words, product of the electric field and surface area. Product of the electric field and surface area is known as the flux. But if you will now watch all these three cases, so neither your electric field is changing nor your surface area in magnitude is changing. मैग्नीट्यूड में आपका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स सब जगह सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. देखो यहाँ पे सरफेस एरिया उतना ही रहा, हाँ डायरेक्शन जरूर बदल गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई. हरी बात समझ में? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ फिर भी आपका फ्लक्स चेंज हुआ. ना तो ई चेंज हुआ ना एस चेंज हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है आपकी यूनिफॉर्म, फील्ड एरिया मैग्नीट्यूड में सेम है सब जगह, जो सरफेस एरिया है वो सेम है सब जगह, तो वो चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज नहीं होना चाहिए था. लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया इसकी बेसिक डेफिनेशन से, तो हमें लगा कि परपेंडिकुलर में ये मैक्सिमम था और जब सरफेस पैरेलल हो गया तो ये मिनिमम हो गया. इसका मतलब देयर इज सम क्वांटिटी व्हिच इज डिसाइडिंग इट, राइट, एंड दैट क्वांटिटी वाज योर एंगल थीटा. वो क्वांटिटी क्या थी आपकी? एंगल थीटा. क्या था थीटा? थीटा वाज टेकन एज अ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर. यहां पर ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो लिया गया. बट यू कांट राइट हियर डायरेक्टली द एंगल थीटा, दैट इज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सम व्हाट trigonometric functions, sin theta, cos theta, etc. Generally sin and cos are taken here. Okay, so we see that here. अगर हम इन सब केस में ध्यान से अब इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि सो लेट अस ड्रॉ एरिया वेक्टर. अभी हमने डिटेल में पढ़ा, परपेंडिकुलर है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा. लेट अस से दिस इज योर एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर एस वेक्टर. इसका सरफेस एरिया अपवर्ड आएगा इस तरह से परपेंडिकुलर, थोड़ा किसी एंगल के ऊपर होगा क्योंकि सरफेस टिल्टेड है. और इसका एरिया वेक्टर बनाएं तो कंप्लीटली परपेंडिकुलर हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. सो फर्स्ट केस में अगर आप एंगल की बात करें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर सरफेस एरिया. सो दीज आर द पैरेलल वेक्टर, सेम डायरेक्शन. सो यू कैन सी हियर एंगल थीटा इज योर 0 डिग्री. In this case here you will have some angle, we call that as the theta. कुछ एंगल आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर जो आपका एंगल है वो हो गया यहाँ पे 90 डिग्री. थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री. अब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब है कि सरफेस एरिया वेक्टर कंप्लीटली फील्ड की क्या है? परपेंडिकुलर है. ध्यान से देखिए, सरफेस तो पैरेलल है लेकिन एरिया वेक्टर क्या है उसका? परपेंडिकुलर है. इस बात को ध्यान से समझना है आपने, ठीक है. अब ऐसी कौन सी टी रेशो है जिसमें 0 डिग्री पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू मिले और 90 डिग्री पुट करें तो मिनिमम वैल्यू मिले? वो होता है आपका कॉस. कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है और कॉस 0 डिग्री जो है आपका वो कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है और कॉस 0 डिग्री आपका 1 हो जाता है. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक टर्म कॉस थीटा भी साथ में लिख देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है. ई एंड एस मेरे पास सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, लेकिन ओरिएंटेशन एंगल थीटा दिखाएगा.
अगर सरफेस मेरा परपेंडिकुलर है तो एंगल थीटा मेरा 0 डिग्री होगा। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखेंगे, आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो कि हम बॉल परपेंडिकुलर रहे हैं और एंगल हम लोग 0 डिग्री ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर। आज तक आपने परपेंडिकुलर को 90 डिग्री लिया है और पैरेलल को 0 डिग्री लिया है, लेकिन अब ध्यान देखना है, आपने यहाँ से आगे ध्यान से सुनना है, समझना है कि परपेंडिकुलर या पैरेलल किसको बोला जा रहा है। सरफेस एरिया तो परपेंडिकुलर है, ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ से, लेकिन एरिया का जो वेक्टर है वो पैरेलल है। अरे बात समझ में? तो एंगल हमने परपेंडिकुलर के केस में क्या ले लिया? 0। तो जब आप cos 0 पुट करेंगे तो फाई आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जब आपका सरफेस पैरेलल हो गया, ये वाला केस सरफेस फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गया, तो एरिया वेक्टर क्या बन गया? परपेंडिकुलर। उस केस में थीटा आपका 90 डिग्री होगा और cos 90 0 होता है, आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? वहां पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और इन दो एंगल्स के अलावा कोई और एंगल होगा तो वो एंगल थीटा वहां पे पुट किया जाता है। इज इट ओके? राइट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इट्स basic concept. So let us take some more information on it. You write here at phi is equal to E S cos theta. Flux phi E is equal to E S cos theta. So you know that you can write it like this way also. Phi is equal to E is a vector quantity, so its magnitude. S is a vector quantity, so its magnitude into cos of theta. Here theta is angle between E vector and S vector. Let us say this is your E vector and this is your S vector, so it was angle between these two. So this is dot product. You can call it as a dot product. So phi E is equal to E vector dot S vector. This dot product simply tells you that your phi E is a scalar quantity. Is a simple scalar quantity. Okay. Moreover, let me rearrange these two terms. If you will write like this way, phi E is equal to E cos theta into S. So we call this E cos theta as En and into S. What does this En means? This En means component of electric field line perpendicular to the surface area, or component of the electric field line, or component of the electric field along the surface area vector. समझ भी लेते हैं क्या लिखा, देखिए। लेट अस से मेरे पास अभी हमारे एरिया रेगुलर थे और लाइन स्ट्रेट थी। अब मान लेते हैं ये मेरे पास एक सरफेस है यहाँ पर, कैसा भी है, और इसमें से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर पासिंग लाइक दिस वे। लाइन जो है मेरी इस तरह से पास कर रही है। इज इट क्लियर? सो इफ यू विल टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द सरफेस, so at this point your area vector will be along this direction. I am taking now here the small areas because सब जगह मेरा एरिया वेक्टर अलग हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, if you will talk about this point, then your area vector will be along the line. So I am calling it as a ds vector. Is it right? Here your area vector will be along this direction. If you will talk about this, अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से एरिया वेक्टर आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। अब एरिया वेक्टर अलग अलग पॉइंट पर आपका चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ जैसे एरिया वेक्टर लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ जाएगी। तो स्मॉल पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया तो वी कॉल दैट एज अ स्मॉल ds वेक्टर। ऑल्दो दिस विल बी सेम, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, 3, 4, क्योंकि सब जगह डायरेक्शन अलग अलग है तो आप लोग इनको अलग अलग नाम देंगे। इसे मैंने ds वेक्टर दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर ds और E के बीच में आपका एंगल थीटा बनता है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिजॉल्व करेंगे। अब जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है वो रिजॉल्व्ड कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए, तो आपका ई कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, सॉरी ई साइन कंपोनेंट इधर आएगा और ई कॉस जो है वो इस तरफ चला जाएगा। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होगी यहाँ पर ई वेक्टर की। तो ये जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आया थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो है वो कॉस होता है, और थीटा के ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो आपका साइन होता है। नहीं समझ आया रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको चैनल पे। सो इस तरह से हमने यहाँ पर रिजोल्यूशन कर दी। अब ई वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है इसको हमने ई एन बोला है यहाँ पे, नॉर्मल कंपोनेंट। क्या नाम है इसका, नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, या तो सरफेस के परपेंडिकुलर बोल लो या फिर एरिया वेक्टर के लॉन्ग बोल लो, क्योंकि डीएस भी इसी डायरेक्शन में, ध्यान से देखो। तो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, वेयर En इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। या तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है और कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर के अलोंग है। दूसरा जो कंपोनेंट है उसे जनरली हम लोग टाइजेंशियल कंपोनेंट बोल देते हैं, जो सरफेस के पैरेलल है। आ रही बात समझ में, इट इज क्लियर। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ई एन एंड एस। अगर कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो आपको ई एन एंड एस लेना पड़ता है, जहां पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। इट इज क्लियर, दिस इज न्यू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखिए फाई ई इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस इज डिफाइंड एज द product of the normal component of the electric field and the surface area. Okay, so what is normal component? Normal component En is equal to E cos theta, where theta is angle between E and S. So from here you can find out its dimension formula also, E and SI unit, those small things to do, you can do those yourself. So En का unit होता है, देखिए SI न्यूटन पर कूलम, और इंटू एस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। सो योर यूनिट बिकम्स फ्रॉम हियर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बेटा आपका ऐसा यूनिट हो गया, सीजीएस बना लेंगे। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें आप लोग फाई का, तो ई एन को बेसिक में ब्रेक करना है आपने, तो ई एन होता है फोर्स अपॉन चार्ज मल्टीप्लाइड बाई एस, ठीक है। फोर्स, आपका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी इंटू एस, एस का डायमेंशन फॉर्मूला L2 एरिया है। ओके, सो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, सो यू विल गेट इट डायमेंशन फॉर्मूला, एंड आई थिंक दैट शुड कम आउट अबाउट ML3 T माइनस 3 A माइनस 1। कैलकुलेट करके देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी है बच्चों, लेकिन बड़े ध्यान से देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का। तो नेक्स्ट में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, तो एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, चलो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, कि जब हमारे पास सरफेस एरिया बहुत इरेगुलर होता है और बड़ा होता है, जहाँ पर एरिया वेक्टर्स अलग अलग होते हैं बच्चों, तो वहां पर हम लोग स्मॉल स्मॉल एरियाज में अपने पार्ट को डिवाइड करके, जैसे ये हमने पार्ट डिवाइड कर लिया, यहाँ पर फ्लक्स आपने फाई 1 निकाल लिया, इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल लिया आपने, मान लो फाई 2 आ गया, इसका निकाल लिया फाई 3 आ गया, इस एरिया का आ गया फाई 4 आ गया। वैसे हमने अपने पूरे सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फ्लक्स निकाला और लास्ट में सबको ऐड कर दिया, ठीक है। ये तरीका होता है एक इरेगुलर सरफेस का फ्लक्स निकालने का, या किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का, कि हम लोग उस कंप्लीट एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट्स पर कैलकुलेशंस करते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं। बट इन फिजिक्स में हम लोग एक मैथमेटिकल टूल करते हैं एडिशन या समेशन के लिए, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ओवर द लिमिट्स। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे, हमारा जो स्मॉल फ्लक्स है डी फाई से डिनोट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी ई एन वेक्टर डॉट स्मॉल एरिया ds वेक्टर। कोई एक पार्ट ले लिया, उसका एरिया ds है, और वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, ई वेक्टर नॉट एन, एन नहीं आएगा, जब आपने डॉट लगाया तो एन नहीं आएगा, ये अंडरस्टूड है कि डॉट लगा दिया तो नॉर्मल कंपोनेंट खुद आ जाएगा। तो यू राइट इट लाइक ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर।
ओके, ई एन तभी लेना है जब आपने बिना डॉट के लिखना है, और ई एन को ई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो डी फाई स्मॉल एरिया का जो फ्लक्स है वो हो गया डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। कंप्लीट निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं आप लोग, यू जस्ट डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाता है 0 to 5 लेके, +1 में बहुत किया आप लोगों ने, अब बताने की जरूरत नहीं है। और राइट साइड पर हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसे करते जाएंगे। ये तो हो जाता है फ्लक्स फॉर ओपन सरफेस। इज इट क्लियर? और अगर आपके पास सरफेस क्लोज है तो हम लोग एक स्पेशल साइन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रेशन के साइन पे एक सर्कल बना देते हैं, गोल सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब होता है आपका जो सरफेस है वो क्लोज्ड है। जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, सफियर हो गया, उनकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम वहां पर एक उस क्लोज सरफेस को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक इंटीग्रेशन के साइन पे क्लोज का साइन लगा देते हैं, ठीक है। सो बाकी और भी पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।